غوث الورا رے داتا نے میری رضا رے خواجہ نے غوث الورا رے داتا نے میری رضا رے خواجہ نے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ارے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے پڑھے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے کہ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے اے کاش میری قبر میں اور ہم سب کی قبر میں فرشتے یہ کہہ دیں کہ سونے دل سے یہ نبی کا غلام ہے لیکن پیارے پیارے اسلامی بہنوں ہم آپ درود پاک پڑھتے ہیں اچھا درود پاک پڑھتے ہیں فائدہ کس کا ہے ہم سب کا لیکن ہمارے نبی پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتے ہیں میرا رب عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی میرے نبی پر میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے نا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو میرے دونوں فرشتوں کا کام چالو ہوتا ہے کیسے ایک نیکیاں لکھتا ہے تو ایک گناہ مٹاتا ہے کوئی نیکیاں آپ کریں تو صرف نیکیاں ملیں گی کوئی گناہ کرے صرف آپ کو گناہ ملے گا لیکن درود پاک پڑھنے میں نیکیاں بھی ملتی ہیں اور گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں دیکھیے جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انشاءاللہ عادت بنا لے تو دیکھیں اس کا بیڑا پار ہے جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو تب تک نہیں مرتا جب تک جنت میں اپنا جگہ نہ دے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں بڑی درود پاک نہیں آتی تو بس اتنا ہی پڑھی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں کوشش کریں کہ یہ زندگی ہم کم سے کم زیادہ سے زیادہ کام میں تو زیادہ گزرتی ہے اللہ کے ذکر میں کم گزرتی ہے لیکن کوشش کریں کام تو کبھی ختم نہیں ہونے والا تو اپنے سروں کو اٹھا کے رہیں کلمہ درود بھی پڑھیں انشاءاللہ گھر کا کام بھی ہوگا میرے رب کا ذکر بھی ہوگا تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں پڑھیں گے نا انشاءاللہ 13 مرتبہ تو شروعات کریں پھر انشاءاللہ بڑھاتے بھی جائیں گے کیونکہ جنت میں سب اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی پڑھیں پھر اس کے بعد کیا ہے کلمہ پڑھنے کی بھی عادت بنائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتا ہے بندہ روزانہ 100 مرتبہ انشاءاللہ مرتے وقت بھی ہم سب کی زبان پر کلمہ جان کر جائے جس چیز کی اچھی عادت ہو جو اچھی عادت ہو نا چاہے بری عادت ہو وہ عادت ہمیشہ انسان کے ساتھ آتی ہے تو انشاءاللہ کیوں نہ ہم اچھی عادت بنائیں چاہے مرتے وقت ہو چاہے سوتے وقت ہو چاہے اٹھے ہو چاہے بیٹھے ہو چاہے لیٹے ہو ہر وقت ہماری زبان پر کلمہ کا بھی نہ جانے رہے درود پاک کا بھی نہ جانے رہے تو انشاءاللہ موت بھی آئے گی نا تو ایسی حالت میں تو دیکھیے اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے اپنی جٹھانی کی لڑکی کی بات بتا دوں کہ میری جٹھانی کی لڑکی تھی وہ 12 سال کی تھی تب سے اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کی طبیعت خراب ایسی ہوئی اسے بخار ہوتا تھا بخار کی دوا کھاتی تھی اور صبح اس کا ایگزام چل رہا تھا صبح دوا کھا کے جائے ایگزام دے کر آئے پھر اس کو بخار تیز چڑھ جائے پھر دوا کھائے پھر ایگزام دے کر آئے پھر اس کے بعد بخار تیز چڑھ جائے بس ایک مرتبہ ایسے ہی دوا لاتے لاتے ڈاکٹر نے ایسی دوا دے دی کہ اس کو دوا اتنی تیز ریئیکشن کی کہ جو یہ ناخن ہے نا 10 انگلی کے یہ 10 انگلی کے پورے 20 انگلی کے ناخن جھڑ گئے بال تک جھڑ گیا اور آنکھوں میں جانتے ایسے دھاگے دھاگے کی طرح بن گیا اس کی ایسی دوا ریئیکشن پیروں سے ہاتھوں سے چمڑا چھوٹنے لگا اللہ اکبر یہاں تک کہ دیکھیے پیارے پیارے اسلام پہلو اس کو یہاں کمر بس اتنا بڑا پھوڑا تک ہو گیا اور ڈاکٹر کو دکھایا گیا ڈاکٹر آپریشن کو بول دیا اب اس کا آپریشن بھی لوگ کرا دیا اب اس کی ڈریسنگ کرنے کے لیے کون روز لے جائے تو گھڑی میں ہمارے جیب پہ وہ خود بیچاری کرتے تھے
اس کی ڈریس، لیکن اس کی کمر کی وجہ سے، اس کا آپریشن ہونے کی وجہ سے بیچاری اچھے سے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، اٹھتی تھی تو بہت دھیرے دھیرے کھڑی ہو پاتی تھی۔ اور جانتی ہیں ایسے کرتے کرتے وہ کم سے کم 8-10 سال جھیلی، 8-10 سال جھیلی وہ لڑکی۔ پھر اس کے بعد کیا پتہ چلا گردن پاس بھی تھوڑا نکل گیا۔ اب کیا گردن کا نہیں نا کوئی آپریشن کروائے گا، تو کوئی کہا بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھائیے، جا کر دکھائیے، اس کو دکھائیے۔ تو جب دکھایا گیا تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ کہ اس سے ٹھیک ہو گیا، اس کا نہیں آپریشن کرانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جانتے ہیں وہ لڑکی کی حالت کیا تھی، ایسی حالت میں 12 سال کی لڑکی تھی، 22 سال کی ہو کر اس کا انتقال ہوا۔ اور جب ایسے میں تھی نا تو اس کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا دکھائی دیتا تھا، جب یہ سب بھاگا بھیتر آ گیا، لیکن وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہی جب تک اس کو دکھتا رہا، یہاں تک کہ روزہ بھی رکھتی رہی، نماز بھی پڑھتی رہی، ایسی حالت میں تھی۔ اور پھر جانتی ہیں آخری وقت میں یہاں تک کہ اس کی امی کہیں بیٹا روزہ نہ رہا، تم ایک ٹوسٹ کھا کر روزہ رہتی ہے، گلگلا پکوڑی کھا کے روزہ کھولتی، کچھ کھاتی نہیں، مت رہا کرو بیٹا۔ کہ امی آپ قیامت کے دن کھڑی ہو رہی ہے میرے کہنے کے لیے کہ میری بیٹی تو اس کی امی کیا بولے، کوئی کھڑا ہوگا جب باپ بیٹا کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، تو کون کھڑا ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ تو ایسے کہا چپ ہو گئی ماں، رہنے لگی۔ پھر یہاں تک کہ اس کا ایسا وقت ہو گیا نا کہ آخری وقت میں بھی جب اس کا تھا تو بیچاری کھانا کچھ کھائے نا تو اس کے گلے کے نیچے جاتا ہی نہیں تھا، اس نے اتنا مسل کے روٹی کھلاتے تھے ہاتھوں سے لیکن جاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اگر جو اٹھے استنجا کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں اس کو استنجا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس حالت میں مجھ سے 1-2 روزہ ہوا، چھوڑی نہیں، آخری وقت تھا، پتہ نہیں تھا ہم لوگوں کو۔ لیکن جانتے ہیں اس لڑکی نے کیا کہا آخری وقت میں، کہا کہ امی آج ہم کو آپ لوگ سیدھا کریں، ہمیشہ کروٹ لیٹتی تھی، تھوڑے وجہ سے چت نہیں لیٹ پاتی، کہیں امی ہم کو سیدھا کر دیجیے اور ہم اب جا رہے ہیں، آپ لوگ روئیے نہ مت۔ کوئی مرنے والا کبھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ امی ہمارا آخری وقت ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ ہم کو سیدھا کر دیجیے، آپ لوگ روئیے گا مت، اتنا کہا اور اس کو سیدھا کر دیا گیا۔ اور سیدھا کیا نا تو کوئی کچھ کہا نہیں، اپنے من سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا پڑھا کہ زبان لڑکھڑانے لگی، لڑکھڑاتی زبان سے بھی اس نے کلمہ ادا کیا، چھوڑا نہیں، اور کلمہ پڑھتے اس کا دم نکلا۔ آنکھوں سے لیکن کبھی کسی کی موت نہیں دیکھی تھی، لیکن جب موت دیکھی نا کلمہ پڑھتی دیکھی اور اسی کو دیکھا، سبحان اللہ۔ لیکن کبھی 12 سال ہو سمجھیے 10 سال بیمار تھی، لیکن کبھی ناشکری نہیں کی، ہم اس کے ساتھ تھے، میری شادی کے شروع تبھی سے ہم اس کو دیکھے، لیکن کبھی اس نے کہا نہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ کیوں ایسا کہ ماں بہن غصہ بھی کرتی تھی کہ اس کے ساتھ ہر وقت اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لے جانا پڑتا ہے، ہر چیز کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتی تھی کہ امی آپ لوگ ایسے کیوں کہ اللہ پاک ہم کو جلدی سے اٹھا لیا، ایسا کچھ نہیں سنا۔ عبادتیں سب کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی۔ جب کی پیڈ والا موبائل ہے نا وہ موبائل چلتا تھا، اس کو دکھتا نہیں تھا، ہم کو آتا نہیں تھا، بس اتنا کہیں چچے اوکے دبائیے بغیر دیکھ سب بتا دیا، ماشاء اللہ دماغ بھی بہت تیز تھا، اتنی نیک تھی کہ سوچی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ سوچی ہر روزہ رہے، نماز بھی پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے، اللہ ہم سب کو بھی ایسا بیماری میں اس کو لے لیا تھا، اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے کلمہ والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسی لیے کلمہ آپ لوگ سب لوگ پڑھنے کی عادت بنائیں، عبادتوں میں دل لگائیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے کلمے والی مدینے والی ہیں، اور استغفر اللہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیے استغفر اللہ یعنی ایک یہ دعا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نہیں آتا تو بس اتنا ہی پڑھے استغفر اللہ، کیونکہ میرے آقا جو اتنے معصوم تھے، اتنے نیک تھے کہ وہ تو کوئی ان کو گالی بھی دیتا تھا تو وہ دعائیں دیتے تھے، کوئی ان کو پتھر بھی مارتا تھا تو وہ دعائیں دیتے تھے۔ میرے وہ آقا روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، تو ہم لوگ کو نہیں پڑھ جائے، ہم لوگ تو اتنے گناہگار ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنتے بولتے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اور دیکھیے یہ دعا بھی آپ لوگ یاد کریے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ یہ دعا 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ دیکھیے آج انسان دنیا میں کون سی بیماری ایسی ہے جس کا انسان، بہت سی بیماری ایسی کہ انسان نام نہیں جانتا ہے نا، تو اسی لیے اگر جو آپ لوگ یہ عادت بنا لیں گے 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ چلیے آپ کو اکٹھا وقت نہیں مل رہا تو آپ ایسے پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ہے نا۔ اور ایک یہ دعا ہم عورتوں کو ضرور کرنا چاہیے، لکھا میں نے پڑھا ہے کہ عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں نا تو ان کے ساتھ شیطان ہو رہتا ہے،
तो इसीलिए कोशिश करें घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जिसको नहीं आती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के ही घर से निकलिए, और जब घर में कदम रखा करिए तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दाहिना कदम रखिए, और घर वालों का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरत पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह घर में लड़ाई झगड़े से भी बचेंगी और खैर व बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। ये दुआ जरूर बिस्मिल्लाह करके ही कदम रखेंगे। अगर हम हर चीज में बिस्मिल्लाह करें ना इंशाल्लाह, देखिए आप ही बात है, हमारी भी कोई हमारे स्पेशल नहीं, आप जैसे ही हैं, तो आप हम सब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के हर काम करें ना, उसमें खैर और बरकत भी होगी, मेरा रब भी राजी होगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से 10,000 दर्जे बुलंद होते हैं। तो अल्लाह हम सबको हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की तौफीक अता फरमाए। देखिए लिखा है कि हज़रत सैयदना शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाह को बाद वफात किसी ने ख्वाब में इस हाल में देखा कि वो जन्नती हुल्ला यानी जन्नत का लिबास ज़ेब-ए-तन किए मोतियों वाला ताज सर पर सजाए शिराज की जामा मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाला पूछा कि यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने मुझे बख्श दिया, मेरा इकराम फरमाया और मोतियों वाला ताज पहनाकर दाखिले जन्नत किया। पूछा किस सबब से? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल मैं महबूब रब्बुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद सलाम यही अमल काम आ गया। तो इंशाअल्लाह हम भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो देखिए प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, अब मिलाद की अजमत मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद कोई और बात बताऊं। देखिए अब आइए मैं आपको मिलाद की अजमत बुलंदी और उसकी अहमियत को कुरान व हदीस की रोशनी में समझाऊं। और मिलाद का माने पैदाइश के है, लिहाजा जब जब मिलाद का नाम है या महफिल मिलाद मनाई जाए तो इससे यही मुराद दिया जाएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र होगा, सरकार की आमद का बयान होगा, सरकार की खूबियों और कमाल का जिक्र होगा, सीरत रसूल कुनैन बयान की जाएगी। तो जब आप समझ चुकी और ये जान चुकी कि मिलाद से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, तो अब आप ही बताइए कि क्या नबी की पैदाइश का तज़किरा करना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आरी की खुशी में महफिल सजाना, लाइट बल्ब और कुमकुमों से अपने घरों और मोहल्लों को सजाना, खुशी का इत्माम करना क्या गलत हो सकता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसे हसीन मौके पर खुशी का इजहार करना ये तो अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी सआदत है, खुशनसीबी है और फिरोज बख्ती की बात है। मगर ये अफसोस इसी जमीन पर रहने वाली और कलमा पढ़ने वाली एक जमात ऐसी भी है कि ये जमात मिलाद मनाने को शिर्क और बिदात कहती है, सरकार की आमद पर खुशियों के तमाम करने को फजूल खर्ची और बिदात कहती है। लिहाजा मेरी माँ और बहनों ऐसी गुमराह जमातों से दूर रहो, उनके मदरसों में अपने बच्चों को बराए तालीम मत भेजो, उनसे रिश्ता न करो और सुनो हमेशा अपने रसूल की मिलाद की महफिल सजाती रहो, ईद मिलाद नबी का एहतमाम करती रहो, अपने आका का जिक्र करती रहो और जलने वाले को जलने दो और रोने वाले को रोने दो। जलने वाले जलते ही रहेंगे मगर प्यारे आका का तज़किरा होता रहा है और होता ही रहेगा। जिक्र मुस्तफा ना रुका था ना रुका है ना सुबह क़यामत तक रुकेगा। तभी तो हमारे इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खाक हो जाए अद्दजल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। देखिए प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, रवायतों में आता है कि जिस जगह और जिस मोहल्ले में और जिस घर में महफिल मिलाद मनाई जाती है वहाँ साल भर तक रहमतों का नुज़ूल ही नुज़ूल होता रहता है, अमन व अमान और आफियत रहती है और वो मकान और मोहल्ला साल भर तक हर तरह की बलाओं से महफूज हो जाता है। देखिए वो लोग जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खर्च करने को इसराफ और फजूल खर्ची बताते हैं, माज़अल्लाह अल्लाह की पनाह शिर्क और बिदात भी करते हैं। उन मुस्ताकों और दरिद्र लोगों को इस मशहूर रवायत को याद रखनी चाहिए जिसके नामी खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाते हैं यानी जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक पर एक दिरहम भी खर्च किया तो वो शख्स जन्नत में मेरा साथी और मेरा पड़ोसी होगा। अब एक बात यहाँ पर समझने की ये है कि कोई इंसान किसी भी इंसान का जन्नत में साथी और रफीक कब होगा? जब वो जन्नती होगा तभी ना, वरना रफाकत और पड़ोस का क्या माने? तो गोया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु महफिल मिलाद मनाने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं, यानी कि महफिल मिलाद मनाने वालों को जन्नत की खुशखबरी मिल गई। अपने घर में आका की मिलाद सजा लिया, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना कि उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। क्या मिलाद की महफिलें कायम करने वालों न सिर्फ ये कि तुम जन्नती हो बल्कि जन्नत में मेरे साथी भी।
अल्लाह हम सबको अपने अपने घरों में महफिल मिलाद सजाने की तौफीक अता फरमाए। आपको ये ना सोचें कि हम गरीब हैं तो हम कैसे सजाएंगे, आपके घर में जितना है आप उसमें ही सजाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आना होगा आपके घर आएगा, कोई ना आए आपके घर में फरिश्ते आएंगे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। और किसी के आने की क्या जरूरत, कोई गरीब समझ के आपके घर में नहीं आया, ऐसा नहीं। आका की महफिल सुनकर चाहे जितना गरीब हो सबके घर जाया करिए आप। उनके घर में वो गरीब नहीं जाएगा, उनके घर इंतजाम नहीं होगा। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों ऐसा ना करें, जिसके घर में जिसको अल्लाह ने जितना दिया है आप उतने में खुश होकर उनके घर में जाइए। महफिल मिलाद किसी ने सजाई अपने घर में तो आप भी जाइए इंशाअल्लाह। देखिए प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों लिखा है कि ऐ नमाजियों, ऐ रोजादारों, ऐ हाजियों, ऐ पूरी ज़कात अदा करने वालों, ऐ खैरात और हसनात में हिस्सा लेने वालों, नेक सूरत नजर आने वालों, मालदारों, डर जाओ, लरज़ उठो। हकीकत में मुफलिस वो है जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, सखावत, फलाही कामों और बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद क़यामत में खाली का खाली रह जाएगा। अल्लाह, जिनको कभी गाली देकर, देखिए ये भी आम है, आज गाली तो नाम है मुसलमान का, लेकिन बहुत औरतें, मर्द तो मर्द, औरतों के जुबान पर भी गाली, और ऐसी ऐसी गाली नहीं, मैंने कितनी औरतों को मर्दाना गाली देती है रसूल। अल्लाह बताइए, मैंने पढ़ा कि अगर जो कोई किसी को एक गाली देता है ना तो उसके लिए कब्र में एक बिच्छू तैयार। आप सोचिए बचपन से जवानी, जवानी से देर से बुढ़ापे में आ गए और इतनी गालियां दी, तो बताओ कब्र हमारी बिच्छुओं से भर गई तो मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, उन्हीं के ऊपर लेटेंगे, है ना। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों कोशिश करें अल्लाह हम सबको, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी देने से बचेंगे, है ना इंशाअल्लाह। देखिए सिर्फ आप नहीं, हम अपने को भी कह रहे हैं, गलत ना समझिएगा, सबके लिए है, कोई हम स्पेशल नहीं है। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों इंशाअल्लाह हम सब करें कि गाली ना दे, क्योंकि हमें कब्र में नहीं तो कीड़ा भी, अगर कोई इंसान कीड़ा की क्या बात करें, एक चींटी भी अगर हमारे बदन पर चलती है ना तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, तुरंत हाथ करता है। अब बताइए पूरा कीड़ों का घर होगी, तो बताइए हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इंशाअल्लाह गालियों से भी बचेंगे। कभी बिला जावेद शरीफ डांट कर किसी को बिगड़ वजह किसी को डांट दिया, बेइज्जती किसी की कर दी, अल्लाह जलील करके, मार पीट करके, आरियतन चीजें लेकर कस्तन वापस ना लौटाकर, यानी किसी की चीज ले लो और वापस ना दो, कर्ज दबाकर, दिल दुखाकर नाराज कर दिया होगा, उसकी सारी नेकियां ले जाएंगे और नेकियां खत्म हो जाने की सूरत में उनके गुनाहों का बोझ उठाकर वासिले जहन्नम कर दिया जाएगा। अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने का निशान है, तुम लोग हुकूक हक वालों के सपुर्द कर दोगे, हत्ता कि बेसींग वाली का सींग वाली बकरी से भी बदला लिया जाएगा। यानी अगर आज दुनिया में बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा ना, तो कयामत के दिन बेसींग वाली बकरी को सींग अता की जाएगी कि जा तू अपना बदला ले, मतलब कोई बचेगा नहीं। आज दुनिया में इंसान सोच रहा है हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हम फला फला कर लें, नहीं, कोई बचने वाला नहीं। और दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा। मतलब ये कि अगर तुमने दुनिया में लोगों के हुकूक अदा ना किए तो यानी हर सूरत में कयामत में अदा करोगे, यहाँ दुनिया में माल से और आखिरत में अमाल से। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि दुनिया ही में अदा कर दो और ना पछताना पड़ेगा। जानवर अगरचे शरई हुकूक के मुकल्लिफ नहीं है, मगर हुकूक के बाद जानवरों को भी अदा करने बताइए, उनको है नहीं करना, लेकिन उनको भी अदा करना पड़ेंगे। अल्लाह से दिल का खौफ रखने वाले हज़रत हुकूक के बाद मज़ाहिर मामूली नजर आने वाले मामलात में भी ऐसी एहतियात करते हैं कि हैरत में डाल देते हैं। देखिए चुनांचा अब इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आप लोग सुनेंगे ना तो कहेंगे अल्लाह कितनी गलती हम लोग करते हैं। आधा सेब हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाग के अंदर नहर में सेब देखा, उठाया और खा लिया। खाते तो खा लिया, मगर फिर परेशान हो गए कि ये मैंने क्या किया, मैंने इसके मालिक की इजाजत के बगैर क्यों खाया। और सोचिए नहर में था, उठाकर खाया, तोड़कर तो नहीं खाया, लेकिन सोचा आधा खाया और आधा अभी छोड़ दिया। मैंने खा लिया बगैर मालिक के पूछे। तो उसके बाद क्या हुआ, चुनांचा तलाशते हुए बाग तक पहुंचे। बाग की मालिका एक खातून थी, उनसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने माजरत तलब फरमाई। उसने अर्ज किया ये बाग मेरा और बादशाह का मुश्तरका है, मैं अपना हक माफ करती हूँ, लेकिन बादशाह का हक माफ करने के लिए मिजाज नहीं है, बादशाह बल्ख में था। लिहाजा सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने आधा सेब माफ करवाने के लिए बल्ख का सफर इख्तियार किया और माफ करवा कर ये दम लिया। भाई आप लोग कितनी चीजें खा लेते हैं किसी के बगैर पूछे, और कभी पूछा ही नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी नहीं पूछा। लेकिन देखिए बस उन्होंने सफर करके जितने का सेब नहीं खाया उतना तो उन्होंने किराया लगा। तो प्यारे प्यारे इस्लामी बनो, देखिए ऐसे होते हैं लोग। अब देखिए एक दूसरी बात, इस्लामी बनो
आप लोग शोर ना करिए, शोर बहुत ज्यादा। तवज्जो हट जा रही है। मीठे मीठे इस्लामी बने इस हिकायत में बगैर पूछे दूसरों की चीज़ें हड़प कर जाने वालों, सब्जियों और फलों की रेड़ियों से चुपचाप कुछ न कुछ उठाकर अपनी टोकरी में डाल लेने वालों के लिए व्रत ही व्रत है। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली शय भी अगर बगैर इजाज़त इस्तेमाल कर डाली और क़यामत के रोज़ पकड़े गए तो क्या बनेगा। चुनांचे हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शिरानी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि मशहूर ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक इस्राएली शख्स ने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा की। 70 साल तक लगातार, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि एक इस्राएली शख्स ने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा भी की। 70 साल तक लगातार इस तरह इबादत करता रहा कि दिन को रोजा रखता और रात को जग कर इबादत करता। सोचिए 70 साल तक कोई मामूली चीज है, बहुत बड़ी चीज है। 70 साल तक दिन को रोजा में रहता और रात को जग कर इबादत करता, ना कोई उम्दा ग़िज़ा खाता, ना किसी साए के नीचे आराम करता। उसके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख्श दिए, मगर एक लकड़ी जिससे मैंने उसके मालिक की इजाज़त के बगैर दांतों में खिलाल कर लिया था और ये मामला हुकूकुल इबाद का था और वो माफ़ करवाना रह गया था, उसकी वजह से मैं अब तक जन्नत से रोक दिया गया। सोचिए, यहाँ हम लोग थोड़ी सी इबादत कर लेते हैं तो सोचते हैं हमसे बड़ा कोई इबादत गुजारी नहीं है। हम थोड़े से रोजे लगातार रहने लगते हैं तो सोचते हैं हमसे बड़ा रोजादार ही नहीं कोई। हम थोड़ा तहज्जुद गुजार हो जाते हैं तो सोचते हैं हमसे बड़ा कोई तहज्जुद गुजार ही नहीं है। नहीं, प्यारी प्यारी इस्लामी ने देखिए ये लोग भी इबादत गुजार थे। 70 साल इबादत करना मामूली बात नहीं है। और रोजा रखते थे, दिन भर रोजा रखा 70 साल और रात को जाग कर इबादत की। अच्छा खाना भी नहीं खाते थे, आराम भी नहीं फरमाते थे। देखिए वो बंदा रो गया तो हम क्या चीज। सोचिए, और सिर्फ किस वजह से एक तिनका निकाल कर दांतों में थोड़ा सा खो दिया, कुछ रहा होगा, फंसा होगा, पूछा नहीं था फला से जिसका था। अब बताइए हम कितनी चीजें दूसरों के बगैर पूछे ले लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको इससे भी बचाए वाला। अब देखिए गेहूं का दाना तोड़ने का बड़ा नुकसान। मीठे मीठे इस्लामी बहनों जरा गौर तो कीजिए कि एक तिनका जन्नत में दाखिले से रुकावट हो गया और अब मामूली लकड़ी के खिलाफ की तो बात ही क्या है। बाज़ लोग दूसरों के लाखों बल्कि करोड़ों रुपए हड़प कर जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हिदायत इनात फरमाए, आमीन। एक और इबरतनाक हिकायत मुलाज़ा फरमाइए जिसमें सिर्फ एक गेहूं के दाने की बिला इजाजत खाने की नहीं, सिर्फ तोड़ डालने के ऊपर भी नुकसान का तस्करा है। चुनांचे मंकूल है कि एक शख्स को बाद वफात किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे बख्श दिया, लेकिन हिसाब किताब हुआ, यहाँ तक कि उस दिन के बारे में भी मुझसे पूछगछ हुई जिस रोज मैं रोजे से था और अपने एक दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था। जब अफ्तार का वक्त हुआ तो मैंने गेहूं की एक बोरी में से गेहूं का एक दाना उठा लिया और उसको तोड़ कर खाना ही चाहता था कि एकदम मुझे एहसास हुआ कि ये दाना मेरा नहीं है। चुनांचे मैंने उसे जहां से उठाया था फौरन उसी जगह डाल दिया और उसका भी हिसाब लिया गया। यहाँ तक कि उस पराए गेहूं के तोड़े जाने के नुकसान के बकदर मेरी नेकियां मुझसे ले ली गई। अल्लाह, बताइए क्या गेहूं का काम पिसना है ना, और सोचिए सिर्फ उसको तोड़ कर उसी जगह रख भी दिया, फिर भी उनकी नेकियां ले ली गई। लेकिन बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। लेकिन आज हम लोग क्या है, किसी को कुछ भी नहीं, अपने घर में किसी का सामान, देखिए कोई भी आपका देवर हो, जेठ हो, जेठानी हो, कोई भी हो, किसी का सामान हो है तो आपने ना वो अगला देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, हम उसके बगैर कुछ ले भी ले रहे हैं तो उसको बताएं पहले, तब उसके बाद इस्तेमाल करें। पता है उसको अच्छा लगे कि ना लगे। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर उनसे कोई चीज़ मांगो तो उनके चेहरे की आसार से पता चल जाता है कि फलां को ये चीज़ देना नहीं चाहता, ये खुश नहीं है ये देकर। तो ऐसे लोगों से ना मांगना है और ऐसे लोगों की चीज़ें भी बगैर कुछ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब वो नहीं खुश तो आप क्या करेंगे लेकर? तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, बताइए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, गेहूं को सिर्फ तोड़ा और रख दिया बेचारे ने, लेकिन फिर भी उनकी नेकियां ले ली गई। अल्लाह, सोचिए जब बेजुबान जिसको खाया जाता है उसकी वजह से भी हमारी नेकियां जा रही हैं, जो ये बंदे हैं इनकी वजह से हमारी नेकियां ले ली जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, इससे हम सबको दर्स लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम किसी की चीज़, यहाँ तक कि अपने शौहर की कमाई में से भी बगैर पूछे नहीं लेना। देखिए एक माँ अपने बेटे की कमाई में से बगैर पूछे ले सकती है, लेकिन बीवी नहीं ले सकती। सोच लीजिए, लेकिन आज क्या है, नहीं बीवी बगैर पूछे नहीं ले सकती है, पूछ कर उसके जेब में हाथ डालना है।
तो मिल चुका क्यों नहीं मिलेगा? सब बिगड़ बिना सब लोग खाना पीना पहनना घूमना एक्स्ट्रा नहीं होता ना, नहीं तो देखिए लिखा है, मैंने पढ़ा है कि माँ बगैर पूछे बेटे की कमाई में से बगैर पूछे ले सकते, लेकिन आज क्या है, माँ बेचारी पूछ के भी डरती है कि मेरा बेटा ना कर दे। अब बीवी बगैर पूछे भी ले लेती है, फिर भी डरती नहीं है ना। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहन आप देखिए, दूसरा वाक्य सुनिए कि मीठे मीठे इस्लामी बहनों देखा आपने कि एक पराया गेहूं नहीं खर्च करके पहले बना दिया तो ले ले तो पहले बताइए नहीं तो अच्छी बात है, कोई बताया तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों देखा आपने कि एक पराया गेहूं बगैर इजाजत तोड़ देना भी नुकसान क़यामत का सबब हो सकता है। अब सिर्फ गेहूं का दाना तोड़ने की या खा जाने की ही कहाँ बात है, आजकल तो कई लोग बगैर दावत के दूसरे के वहाँ खाना ही खा डालते हैं। हालांकि बगैर बुलाए किसी की दावत में घुस जाना शर्म मना है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में ये भी है कि जो बगैर बुलाए गया चोर होकर घुसा और गारत गरी करके निकला। नहीं आजकल कर्ज के नाम पर लोगों के हजारों बल्कि लाखों रुपए हड़प कर लिए जाते हैं। अभी तो ये सब आसान लग रहा होगा, लेकिन कयामत में बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐ लोगों का कर्जा दबा लेने वालों, कान खोलकर सुनो, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं कि जो दुनिया में किसी के तकरीबन 3 पैसे यानी कर्ज दबा लेगा, 3 पैसे 3,000 की बात नहीं, 300 की बात नहीं, 30 रुपए की बात नहीं, 3 पैसे की बात है, दबा लेगा, बरोज़े क़यामत उसके बदले 700 बाजमात नमाजें देनी पड़ेंगी। 5 वक्त की नमाजी हैं ही 700 बाजमात, वो भी जमात के साथ मर्द लोग के लिए, औरतों को भी तो देना ही पड़ेगा। बताइए कैसे देंगे, नमाज के पाबंद नहीं और कैसे देंगे अल्लाह। जी हाँ, कि जो किसी का कर्जा दबा ले वो जालिम और सख्त नुकसान व खसरान में है। हज़रत सैयदना सुलेमान तिबरानी अपने मजमुआ हदीस तिबरानी में नक़ल करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जालिम की नेकियां मजलूम को और मजलूम के गुनाह जालिम को दिलवाए जाएंगे। अल्लाह देखिए कर्ज की बात चली है ना, तो ये भी बताती चलूँ कि हज़रतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मियाए सादत में नक़ल करते हैं कि जो शख्स कर्ज लेता है और ये नियत करता है कि मैं अच्छी तरह अदा करूँगा, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए जो शख्स ये सोचता है कि मैंने कर्जा लिया और अच्छी नियत करे कि मैं अदा कर दूँगा, तो उसकी हिफाजत के लिए चंद फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है अल्लाह से जल्ल, और वो दुआ करते हैं कि इसका कर्ज अदा हो जाए। और अगर कर्जदार कर्ज अदा कर सकता है तो कर्ज ख्वाह की मर्जी के बगैर अगर ये घड़ी भर भी ताक़ीद करेगा तो गुनहगार होगा और जालिम करार पाएगा। यानी आपने कहा 4 महीना का है कि 2 महीना का है, आपने उस वक्त नहीं दिया तो एक एक घड़ी अब आपकी गुनहगार होगी। जब भी वादा करिए तो उस वादे पर आपको पूरा करना है, वरना इंसान गुनहगार होगा। ख्वाह रोजे की हालत में हो, सोचिए रोजा कोई मामूली बात है, ख्वाह रोजे की हालत में हो या सो रहा हो, उसके जिम्मे गुनाह लिखा जाता रहेगा। यानी सोया भी है, रोजा भी है, तब भी उसका गुनाह लिखा जाएगा। गोया हर हाल में गुनाह का मीटर चलता रहेगा और हर सूरत में उस पर अल्लाह जुल्ल की लानत पड़ती रहेगी। ये गुनाह तो ऐसा है कि नींद की हालत में भी इसके साथ रहता है। अल्लाह अगर अपना सामान बेच कर कर्ज अदा कर सकता है तब भी करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो गुनहगार है। अगर कर्ज के बदले ऐसी चीज दे जो कर्ज ख्वाह को नापसंद हो तब भी देने वाला गुनहगार होगा, और जब तक उसे राजी नहीं करेगा उस जुल्म का जुल्म से निजात नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ये फाल कबीरा गुनाह में से मामूली ख्याल है। तो प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, जब मतलब होता है तो खुशामद और झूठे वादे करके बाद लोग कर्जा हासिल कर लेते हैं, मगर अफसोस 7 करोड़ अफसोस ले लेने के बाद अदा करने का नाम नहीं लेते। गैरतमंदी का तकाजा तो ये है कि जिससे कर्ज लिया अपने उस मौसिम के घर जल्द तर जाकर शुक्रिया के साथ कर्ज अदा करना। मगर आजकल हालत ये है कि अगर कर्ज अदा करना भी है तो कर्ज धक्के खिला कर उस बेचारी के तोड़ फोड़ कर यानी थोड़ी थोड़ी करके कर्ज लौटाया जाता है। याद रखिए बिला वजह कर्ज ख्वाह को धक्के खिलाना भी जुल्म है। आमतौर पर व्यापारियों की आदत होती है कि रकम गले में मौजूद होने के बावजूद शाम को ले जाना, कल आना वगैरह कहकर बिला इजाजत शरई तरखाते रहते हैं, टहलाते और धक्के खिलाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा बवाल
اپنے سر لے رہے ہیں. اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ کیوں صبح کسی کی بھائی کرے؟ بھائی قرضہ جس کو دیا اس کو نہیں آنا چاہیے، جو لیا اس کو چاہیے کہ وہ جا کر دے. لیکن آج الٹا ہوا ہے نا، بیچارہ رو دے کہہ پریشان ہو جائے. تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، قرضوں کا یہاں تک کہ قرضدار کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اگر جو قرضہ لیا ہے اور وہ شہید بھی مرے نا تب بھی اس کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا. بتائیے کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے نا، چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، قرضہ لے کر کتنے لوگ ایسے دینے کی نیت نہیں رکھتے. آج اگر جو بندہ نیت کر لینا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کسی کے ساتھ قرضہ لے تو انشاءاللہ اس کو دینے کی نیت رکھیں، اچھی نیت رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے تو اللہ پاک فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بندوں کی حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے پاس قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے. تو اسی لیے پیاری پیاری اسلامی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا کام نہ کریں. کہ لکھا ہے نا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے. عوام تو کجا کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی. کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی. اب سوچیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیا. اب سوچیے دیتے ہیں تکلیف بندوں کو لیکن ہوتی کس کی، میرے آقا کو. سوچا ہم نے کبھی کہ اللہ ہم اتنی بڑے گناہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں. دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے آقا کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کے ذریعے میرے اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن آج ہم لوگ ان سب چیزوں سے دور ہیں. کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، ہے نا، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کا قرضہ لے قرضہ نہ دیں. ایسا نیت نہ رکھیں، قرضہ دینے کی نیت رکھیں، انشاءاللہ فرشتے دعا کریں. اور کسی کا بھی کوئی چیز بغیر پوچھے نہ لیں. بتائیے یہ گیہوں والا معاملہ تو بہت الگ ہے کہ اس کو صرف توڑا لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں لے گئے. آپ نے وہی جگہ رکھ بھی دیا پھر بھی ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑی. کیا ہم لوگوں نے سوچا، ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں لوگوں کی لے کر توڑ دیتے ہیں، اگلے سے بتاتے بھی نہیں. ہاں کبھی ہم سے ٹوٹ بھی گئے تو بتایا نہیں کہ بھائی ابھی ہمارے اوپر الزام آ جائے گا. بتائیے ایسا کام نہیں کرنا. کتنے لوگ تو بیٹی بیٹا کا رشتہ لگتا ہے تو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا، بیٹے کا رشتہ توڑ دیا. فلاں کے گھر گیا رشتہ تو ہم اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ لیں. تو ایسا کام نہ کر. دیکھیے جس کے گھر پہلے رشتہ آتا ہے نا، پہلے اس کے گھر ہو جائے، پھر اگر جو وہاں سے ہاں نا کا جواب ملے تب آپ اپنے بیٹی بیٹا کی بات شروع کریں. ایسا کام نہ کیا کریں. اگر جو آپ کے بغل میں کوئی ایسا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی پوچھا جائے، کسی کی بیٹی کے بارے میں ہو تو کبھی اس کی برائی نہ کریں. بھائی بیٹیوں کی شادی اچھے سے ہو جائے، کسی کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، ہے نا. بیٹی لوگ کی شادی اچھے سے ہو جائے. کوئی نہیں جانتا کہ ہاں کیسے کسی کی بیٹی کے ذریعے ہماری بیٹی کی بھی شادی لگ جائے. اگر کہیں کوئی رشتہ پہلے لے کے جائے تو آپ اس میں اپنی اڑی نہ لگایا کریں. پہلے اس کے گھر ہو جائے بچے تب آپ اپنا کام کریے، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم سب کا بھلا کریں گے تو رب بھی ہمارا بھلا کرے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیچے والوں پر رحم کرو، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے گا. تو انشاءاللہ آج سے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. سب اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی، اپنے شوہر کے ساتھ بھی، اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے. یہ کم نہیں ہوتی. لکھا میں نے کہ قیامت کے دن حسن اخلاق انسان کا ایک ترازو پر ہے اور اس کی نیکیاں ایک ترازو پر. حسن اخلاق کا ترازو نیچے ہوتا رہے کیونکہ حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے. کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کسی کی ہر ایک بات کو برداشت کرنا. اور رشتہ داروں کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ رشتہ دار جو رشتہ داری لوگ توڑتے ہیں نا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنتے. سوچ لیجیے آج لوگ کیا کر رہے ہیں، رشتہ داری توڑ رہے ہیں، پرایوں کو اپنا بنا رہے ہیں. سوچ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، آپ پرایوں کو اپنا دیکھیں. ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، اگر جو اس نے غلطی کی آپ سے معافی مانگی تو آپ اس کو معاف کر دیجیے. دیکھیے جب میرا رب عز و جل، ہم روز غلطیاں کرتے ہیں، روز گناہ کرتے ہیں، ہم کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر جو معاف نہیں کرتا تو آج ہم یہاں اچھے سے بیٹھے رہتے ہیں. آج اس سے گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے. لکھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ ارے یہ گرمی ہے، ٹھیک ہے گرمی لگ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آگ نہیں برس رہی ہے نا. آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ
कि आग बरसे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सिर्फ गर्मी पड़ी है, क़यामत का दिन कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि सबके साथ अच्छा सलूक करें इंशाअल्लाह। बड़ी दर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफी नबी बिन मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, या खुदा जिस्म में जब तक कि हम सबकी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। खुश रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर, खुश रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर, नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, कि आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है। क्या ज़मी क्या आसमां हर सिमत छाया नूर है, क्या ज़मी क्या आसमां हर सिमत छाया नूर है। और वो अर्श के चराग है मैं उनके कदमों की धूल, कि वो अर्श के चराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ऐ जिंदगी तू गवाह रहना मैं आशिक़े रसूल हूँ, ऐ जिंदगी तू गवाह रहना मैं आशिक़े रसूल हूँ। और निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, कि निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है। मदीने में खुजूरों का मजा कुछ और होता है। और फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, कि फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया। नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। और लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अब मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी से कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, अरे बतला दो गुस्ताखे नबी से कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। अरे उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो दुक्तराने मिल्लत इस्लामिया, आइए एक नाते पाक का नज़ारा उसी आका की बारगाह में पेश करते हैं जिसकी महफिल में आज हम आए हैं और रहमतें और बरकतें लूट रहे हैं। एक बार पूरी महफिल कहते सुभान अल्लाह। ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, कि ज़िक्र अहमद से सीना सजा है। इश्क है ये तमाशा नहीं है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। दोनों चलकर कहते सुभान अल्लाह। कि ज़िक्र अहमद से
लौट आई मगर मेरी नजरें कोई भी तेरे जैसा नहीं है। लौट आई मगर मेरी नजरें कोई भी तेरे जैसा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। कि ये मेरी माँ रुक जा भी तू, फिर चले जहाँ तू कहेगी। ओए मेरी माँ रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ओए मेरी माँ रुक जा भी तू, ओए मेरी माँ रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। अपने मशे के तस्वर में तैबा, अपने मशे के तस्वर में तैबा मैंने जी भर के देखा नहीं है। अपने मशे के तस्वर में तैबा मैंने जी भर के देखा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। एक बार अपनी माँ के लिए कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है ना कि इबादतों का खजीना दिखा के लाऊं, कि इबादतों का खजीना दिखा के लाऊं, मैं उन्हें खुल्द का जीना दिखा के लाऊं। अब मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझे, ऐ मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझे। मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के लाऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के लाऊं। और चलती फिरती राहों में आज़ा देखी है, कि चलती फिरती राहों में आज़ा देखी है। अरे मैंने जन्नत तो नहीं देखी, कि मैंने जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन माँ देखी है। और लेकिन माँ देखी है, और ना अपनों से खुलेगा ना गैरों से खुलेगा, कि ना अपनों से खुलेगा ना गैरों से खुलेगा। ये जन्नत का दरवाजा माँ के कदमों से खुलेगा, ये जन्नत का दरवाजा माँ के कदमों से खुलेगा। तो उसी माँ की मोहब्बत में क्या खूब शेर लिखा है कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। संगे सेवद को चूमा नहीं है, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। संगे सेवद को चूमा नहीं है। वो भी दिल को दिल है जहाँ में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। या फिर नजर फरमाइएगा एक मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। कि हम हुसैनी है गर बल्कि शैदा,
दिल कभी भी न होता है मेला कि हम हुसैन करे बल्कि शैदा, दिल कभी भी न होता है मेला कि हम हुसैनी है करे बल्कि शैदा, हम हुसैनी है करे बल्कि शैदा, दिल कभी भी न होता है मेला, दिल कभी भी न होता है मेला, कुफ्र की धमकियों से डरे जो, कुफ्र की धमकियों से डरे जो, सुन्नियों का कलेजा नहीं है, सुन्नियों का कलेजा नहीं है, वो भी दिल को दिल है जहाँ में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है, कि मदीना खुद का बहुत ही खूबसूरत है, कि मदीना खुद का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सरकार का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत है, और मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कि मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, और जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, कि जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है, अरे ऐसे आमाल करो कि बदन से खुशबू आए, कि ऐसे आमाल करो कि बदन से खुशबू आए, अत्र कपड़ों में लगाने की ज़रूरत क्या है, कि अत्र कपड़ों में लगाने की ज़रूरत क्या है, दुख्तराने मिल्लत इस्लामिया। आइए इस महफिल मिलाद को आगे बढ़ाते हुए चले, और आइए मैं आपको नाशुक्री के वबाल के बारे में बताती हूँ, जो कि आज इस दौर में और ज़्यादातर हम औरतों में पाया जाता है। देखिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे और फरमाते हैं कि ए सहाबा, मैंने जहन्नम से ज्यादा तादाद में औरतों को पाया है, देखा है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किसके सबब? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नाशुक्री के सबब। जब औरतें नाशुक्री करती है ना, जो फरिश्ते होते हैं ना, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते सबके घर में रहमतें लेकर जाते हैं, लेकिन जब कोई औरत को नाशुक्री वाले अल्फाज पाते हैं ना, कि औरत इतनी अच्छे से जिंदगी गुजार रही लेकिन फिर भी नाशुक्री कर रही है, तो वो रहमतें लेके वापस चले जाते हैं, देकर नहीं जाते हैं। आज लोग कहते हैं ना इतने परेशान हैं, पैसा है लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, घर है फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा घर नहीं है, कपड़े हैं फिर भी लोगों का कहना है कि कपड़े नहीं है। आज हम औरतों का हाल ऐसा है ना कि हमारी अलमारियां, बक्से कपड़े से भरे हुए हैं, फिर भी सुकून नहीं है, कम ही लगता है। अभी शादी वगैरह में जाना हो ना, कितने भी कपड़े भरे होंगे, इतने भरे हैं कि अलमारी खोलते ही कपड़ा मुंह पे गिर जाता है, जगह इतनी नहीं है कि उसको अच्छे से रख दिया जाए। बक्से में बंद करे ना तो ठूस कर बंद किया है कि वो की कीलें भी निकल जाती हैं कभी कदार, लेकिन फिर भी औरतें कहती हैं कि है ही कितना कपड़ा मेरे पास। कोई औरत को यहाँ इतने लोग बैठे कह दे कि हम पीवन लगा कपड़ा पहनते हैं, कोई है ऐसा? नहीं है। अरे जरा सा खरोच लग जाए, कूली में भी हमारा कपड़ा फंस जाए ना, दुपट्टा ही फंस जाए ना, तो उस कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं। जिस कपड़े की शाइनिंग चली जाए, भले से एक या दो बार ही पहना, उस कपड़े को घर से हटा देते हैं, अब इसे नहीं पहनना, ये पुराना लगने लगा है। एक कपड़े को अगर 2 जगह लगातार शादी में पहन लिया तो तीसरी शादी में पहनने में शर्म आएगी, लेकिन हम लोग महफिल से बाहर न निकालते। ऐसा होता है कहीं? कुछ औरतों का कहना है शादी हो जाती है, शादी के बाद शौहरों को ताना क्या देती है, जब मैं अपने अब्बा के घर थी ना तो बहुत अच्छे से जिंदगी काटती थी, ये खाती थी, वो खाती थी, ये पहनती थी, वो पहनती थी,
آپ کے ساتھ آئی ہوں, آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے. اللہ اکبر. جو کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھوکا مر رہا ہو, ایسا نہیں ہے کہ ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزار رہا, لیکن پھر بھی زبان پہ ناشکری ہے. ہم تو اتنے ناشکر گزار ہیں نا کہ ہر سب کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ کی ناشکری, ماں باپ کی ناشکری, شوہر کی تو کچھ زیادہ ہی ناشکری ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ لیکن سوچیں ذرا, آج ہم کس دور میں ہیں. کون ایسا گھر ہے جس کے گھر میں ایک ایک دو دو دن چولہا نہیں جلتا؟ کوئی ایسا گھر ہے؟ بتا دے کوئی. یہاں امیر ہو چاہے غریب, بھر پیٹ کھانا کھاتا ہے. کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ کھانا تو کھاتے ہی ہیں, اوپر کی پھل فروٹ وغیرہ ہو گیا. جو تھوڑے زبان کے چٹورے انسان ہیں وہ باہری سامان بھی کھاتے ہیں شام کے وقت. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غریبی کس بات کا, رونا کس بات کا ہے؟ ہر چیز تو کھا رہے ہیں. ناشکری کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اس چیز کی کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب سب کچھ مل رہا ہے, ہر چیز کھا رہے ہیں, پھر بھی زبان میں ناشکری ہے, تو ناشکری تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اب کچھ لوگ ہیں بھی ایسے جن کے پاس دولت کم ہوتی ہے نا, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اگر اسی غریبی میں پیدا کرنا تھا تو دنیا میں ہی نہ بھیجا ہوتا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, اپنے نبی کے زمانے میں چلیں, جن نبی کی امت آج ہم ہیں. جو نبی جب دنیا میں آئے نا تب بھی ان کی زبان پہ امتی کے لیے دعا تھی, اور جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے نا تب بھی ان کے زبان پہ ان کے امتی تھے. انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, جو کہ اگر وہ ایک فرض کرتے نا, ایک بار دعا کرتے نا تو جنت سے ان کے لیے کھانا آتا کہ نہیں آتا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی غریبی میں گزاری. کس لیے گزاری؟ کہ ان کی امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا جو بادشاہ تھا نا وہ بہت رئیس تھا, مالدار تھا. ایسے نہیں ہے, کہتے نہیں, کہہ دیتے انسان. آج ہوتا ہے کوئی اگر انسان امیر ہو نا, 5 وقت کا نمازی ہو, کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ فلانی کو دیکھو کتنی نمازی ہے, تو جواب کیا دیں گی؟ ان کو کام ہی کیا رہتا ہے, نوکر چاکر گھر میں لگے ہوئے ہیں. کس چیز کی فکر ہے؟ پیسہ کوڑی سب ہے ان کے پاس, تو ان کا دل من بھی عبادت میں لگتا ہے. کچھ لوگ اس طریقے کے جواب دیتے ہیں, بے حال لوگ ہوتے ہیں. آج ہم امیروں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں, اپنے آقا کو بنایا آئیڈیل. ان کی زندگی کے بارے میں سوچا, ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دعوے سے کہہ سکتی ہیں کہ جنت میرے باپ کی ہے. کہہ سکتی ہے کہ نہیں کہہ سکتی ہیں؟ دعوے سے کہہ سکتی ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کیسے گزارتی تھی؟ کیسے گزارا؟ ایک دوپٹہ تھا, اس میں بھی پیون لگے ہوئے تھے. ہاں کہ نہیں تھا؟ کیا ان کو خواہش نہیں تھی کہ ہم بھی امیر ہو؟ لیکن نہیں خواہش تھی, کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ میرے ابا حضور اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں, اور کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے. تو وہ بھی غریبی میں زندگی گزاری, کس کے لیے؟ اپنے ابا کی امت کے لیے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کھا رہی ہے, پی رہی, پہن رہی, اوڑھ رہی, اچھے سے زندگی بسر کر رہی. شادی پڑ جائے 10-10 ہزار 20-20 ہزار مارکیٹ میں ختم ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ناشکری ہو جاتی ہے. ابھی کوئی بیمار پڑ جائے اس میں بھی ناشکری, کسی کا لڑکے کا انتقال ہو جائے اس میں بھی ناشکری. ہم تو اتنے بدبخت ہو چکے ہیں نا کہ اگر ہمیں ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس پہ بھی ناشکری ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں. دیکھیے شکر گزار بندہ اور ناشکری کرنے والے بندے کا حال کیا ہوتا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ کوہ طور پہاڑ پہ اللہ سے بات, تو ایک بار وہ جاتے ہیں نا تو ایک بادشاہ رہتا ہے زمانے کا, بڑا رئیس امیر, اس کے پاس اتنی دھن دولت کہ اب اسے لگتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا نا, اس کی دولت اور زیادہ بڑھتی جاتی, اور بھی زیادہ بڑھتی, خوب بڑھتی. تو ایک بار جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور. تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں نا,
तो अल्लाह की बारगाह में मेरा एक सवाल लेकर जाए, इल्तिजा है मेरी कि अल्लाह से जाकर मेरा ये फरमान बताए ना कि मेरे पास माल बहुत है, बहुत ज्यादा है, मैं इस जमाने का बादशाह भी बन गया हूँ, सब अल्लाह की देन है, लेकिन मुझे अब और दौलत नहीं चाहिए। अब जाकर उससे कहना ना कि मुझे देना बंद कर दे, जितना है ना मैं उतने में ही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो कहते ठीक है, वो वहां से चले आते हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते ना तो एक गरीब शख्स को देखते हैं। अब वो इतना गरीब होता है ना, इतना गरीब, सोचे कोई इतना अमीर था, अब वो इतना गरीब होता है ना कि ना उसके सर पे छत थी और ना उसके बदन पे कपड़ा था। इतना गरीब था, यहाँ तक कि वो जो शर्मगाह होती है ना, वो अपनी शर्मगाहों को मिट्टी से छुपाया था। पर सोचिए, अल्लाह किसी को इतना दे रहा है और किसी को इतना भी नहीं है कि वो बदन पे कपड़ा पहन सके। तो वो जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं ना तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कोई दूर पे जा रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, अल्लाह की हम कलाम के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, जा ही रहे तो मेरा एक पैगाम लेते जाइए, अल्लाह से जाके कहिए कि मुझे इतना अता कर दे कि मैं अपनी शर्मगाहों को कपड़े से ढाक सकूं। वो कहते ठीक है, जाते हैं कोई दूर पहाड़ पे अल्लाह से बातें करते हैं, हम कलामी करते हैं। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह, आज जब मैं कोहितूर के लिए घर से निकला ना तो रास्ते में मुझे दो शख्स मिले। एक शख्स बड़ा अमीर था, बादशाह था, और उसने की इल्तिजा कराई है ना कि मैं आपसे आकर ये फरियाद करूं कि आप उसे दौलत देना बंद कर दें। जितना है उतने में वो खुश है, बहुत खुश है, वो खुद भी इस्तेमाल करता है, दूसरों में भी तकसीम करता है, उसे अब वो दौलत नहीं चाहिए। तो अल्लाह कहते हैं कि ऐ मूसा, अब जाओ मेरे उस बंदे से कह देना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। तो कहते ठीक है। तो दूसरे शख्स का पैगाम पहुंचाते हैं कि आपका एक बंदा इतना गरीब था कि उसने अपनी शर्मगाहों को मिट्टी से छुपाया था। उसने कहा है कि अल्लाह से इल्तिजा करना कि मुझे इतना अता कर देना कि मैं अपनी शर्मगाहों को कपड़े से ढाक सकूं। तो अल्लाह कहते हैं कि उस बंदे से मेरे कह देना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर से वापस आते हैं और डायरेक्ट पहले तो वो जो अमीर शख्स था ना उसके पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं, पूछते हैं कि आपने अल्लाह की बारगाह में मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, अल्लाह मुझे देता ही जा रहा है। तो वो कहते हैं कि पहुंचाया था, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जाओ अब मेरे बंदे से कह देना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं इसे देना बंद कर दूंगा। फौरन बंदा बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज इस दुनिया में मेरे साथ जो कुछ भी है ना वो सब मेरे अल्लाह का ही दिया हुआ है, तो मैं शुक्र अदा करना कैसे बंद कर सकता हूँ। एक दौर था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गरीब था, दर दर की ठोकरें खाता था, लेकिन आज उसी अल्लाह की देन है जो आज मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, तो मैं शुक्र अदा करना बंद नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फिर अल्लाह आपको देना बंद नहीं करेगा। वो खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं। फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाता है, फिर इनका रास्ता एक बार उसी शख्स की तरफ निकलता है जहाँ पे वो गरीब शख्स था जिसने अपनी शर्मगाहों को मिट्टी से छुपाया था। वहाँ पहुँचते हैं जब ना तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फौरन आता है और कहता है कि है मूसा, क्या आपने अल्लाह की बारगाह में मेरा कलाम नहीं पेश किया, मेरी इल्तिजा पेश नहीं की? तो वो कहते हैं किया था। तो कहते हैं कि किस तरीके से किया था? आज 3 दिन 4 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन देखिए आज भी मैंने अपनी शर्मगाहों को मिट्टी से ही छुपाया है, अल्लाह ने अता नहीं किया। तो वो शख्स जब इस तरीके से कहता है ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं जब मैंने अल्लाह की बारगाह में आपकी इल्तिजा पेश की ना तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे इस बंदे से कह दो कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। इतना कहना था। बंदा फौरन बोलता है किस बात का शुक्र अदा करूं अल्लाह का, किस बात का? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है? ना मेरे सर पे छत है, ना मेरे बदन पे कपड़ा है। इतना कहना क्या था कि उसने जो अपनी शर्मगाहों को मिट्टी से छुपाया था ना वो मिट्टी भी गिर जाती है। अल्लाहू अकबर।
तो पता क्या चलता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारा शरीर है, हम हैं, कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, सही सलामत भेजा है कि नहीं है। जिसकी एक आंख नहीं है उससे पूछे, जिसका एक हाथ नहीं है उससे पूछे, जो अपाहिज है उससे पूछे कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे है कि नहीं है। भर पेट खाते हैं, हर तरीके की सहूलियत है हमारे साथ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और देखिए शुक्र तो इस कदर होना चाहिए और सब्र इस कदर होना चाहिए। आजकल के औरतों के अंदर सब्र भी नहीं है, शुक्र तो छोड़ ही दीजिए, सब्र भी नहीं है। कहते हैं ना कि अभी एक तेज बुखार चढ़ जाए ना, पेट में दर्द होने लगे ना, सर में दर्द होने लगे ना, उस पे भी हम नाशुक्री के ही अल्फाज अपनाते हैं, बेसब्री के ही अल्फाज अपनाते हैं। आइए इसी ज़माने में मैं एक आपको वाक़या सुनाती हूँ। चलो देखिए, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक बेटा था, वो बहुत बीमार था, बहुत ही ज्यादा बीमार, इतना बीमार था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनका बच्चा बच सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा था उन लोगों को। इतना बीमार था ना कि एक बार हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर से बाहर जाते, जाहिर सी बात है अब बच्चा बीमार है और घर में परिवार है तो बाहर कमाने तो जाना ही है ना। तो वो बाहर जाते ना तो बच्चे की सांसें चलती, बहुत जोर शोर से चलती। वो सुबह में घर से बाहर चले जाते हैं काम के लिए, काम की तलाश में कि कुछ काम हो जाएगा तो उससे पैसा मिलेगा तो बच्चों की दवा भी होगी और घर का खर्चा भी निकलेगा। तो वो सुबह को जाते हैं। उस दिन उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनकी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में रहती है। वो बच्चे की देख रेख करती, बच्चे की पट्टी उतारती, बुखार से तड़प रहा था वो लड़का, एकदम भट्टी जैसे उसका बदन था, जल रहा था। अब बीमारी की हालत में उस लड़के का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। और जब इंतकाल हो जाता है, सोचे ये माँ है, माँ बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। आजकल की माएँ बच्चे का इंतकाल हो जाए उसके बाद कुछ उन्हें नजर आता है, कुछ भी नहीं नजर आता है, ना घर ना परिवार ना अल्लाह ना अल्लाह के रसूल, यहाँ तक कि खुद का भी होश नहीं होता कि हम हैं कहाँ। लेकिन सोचे कि उनका सब्र का आलम क्या था कि बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आज हम इतना सब्र करेंगे, जरा जरा सी बात पे बेसब्री हो जाती है, नाशुक्री के अल्फाज अपनाते हैं। तो वो क्या होता है ना, जब बच्चे का इंतकाल हो जाता है ना तो वो सब्र से हिम्मत से काम लेती और उस बच्चे को दूसरे कमरे में बिठा देती और कपड़ा ओढ़ा देती और रोजाना की तरह जो घर में रहता वो पकाती, घर के सारे काम काज करती और सब कुछ करने के बाद शौहर का इंतजार करती। शाम होती, रात होती, जब उनके शौहर आते हैं तो वो पूछते हैं कि अब बच्चा कैसे है, बच्चा कैसा आया। तो वो जानती है जवाब क्या देती कि आज बच्चा चैन से सोया है, बड़े दिनों बाद। उन्होंने झूठ नहीं बोला था। वो कहती है कि बच्चा बहुत ही सुकून में है, आज जाकर चैन की नींद सोया। तो वो इत्मीनान में आ जाते, सुकून में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो बच्चे की लगा तबीयत कुछ सुधर गई है। वो ये नहीं जानते थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया। अब बताओ, जो बच्चा इतनी दर्द में तकलीफ में था, फिर उसे मौत का फरिश्ता अपने गले लगा ले तो वो सुकून ही में तो रहेगा। तो वो कहते हैं कि बड़े दिनों बाद आज जाके हमारा बच्चा सुकून से सोया है। इतना कहना था क्या, फौरन खाना सामने ला देती है। वो खाना खाते हैं शिकम शेर होकर, सुकून की सांस भरते हैं। और जब सब कामों से फारिग हो जाते ना तो बीवी उनके सामने एक सवाल पेश करती है। कहती, मेरे शौहर, मेरे सरताज, एक बात बताएं, अगर पड़ोसी कोई चीज हमें अमानत के तौर पर दे दे और फिर वो अपनी अमानत हमसे मांगने के लिए आए तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए या नाराज होना चाहिए? तो वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने दिया था, जिसकी अमानत थी वो वापस ले ले, तो इसमें नाराज होना, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बुरा नहीं मानना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। तो उनकी बीवी कहती है
मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे साथ यही मामला पेश आया है। तो वो पूछते क्या हुआ है, तो कहते हैं सब्र से सुनिएगा कि जो हमारा बच्चा था ना, वो खुदा की अमानत था हमारे पास, और आज उसने वो अमानत हमसे ले ली है। वो अमानत हमसे ले ली और बच्चा मर गया है। अल्लाह, इतना सुनना था वो फौरन खड़े हो जाते हैं, कहते बच्चा मर गया, आपने तो कहा था कि वो आज चैन की नींद सो रहा है। तो वो बताती है, कहती है मेरे प्यारे शौहर, बच्चा हमारा आज 1-1.5 महीने का वक्त गुजर गया है, चैन से सोया नहीं था, बीमारी के सबब परेशान हो रहा था, दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, आज जाके चैन की नींद सोया है। और अभी आप बाहर से आए थे, फौरन आपको बताती तो आप परेशान हो जाते, घबरा जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो जब देखते हैं कि मेरी बीवी ने इतना सब्र किया कि माँ सोचे, माँ होती है ना, बाप तो फिर भी सब्र कर लेता, लेकिन माँ के दिल से पूछे। लेकिन सोचे पहले के जमाने की औरतों का सब्र किस आलम का था कि बच्चे का इंतकाल हो जाए उस पर भी सब्र करते हैं, और आज हम जरा सा बीमार हो जाए तो उस पर सब्र नहीं करते। अल्लाह अकबर, बच्चे की मौत का सब्र क्या करेंगे। ऐसे ऐसे मुख्तलिफ बातें होती हैं जिसमें हम मौत का सब्र नहीं करते, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते। लेकिन सोचे वो भी तो एक औरत थी ना, वो भी तो एक बीवी थी ना, वो भी तो एक माँ थी ना, आज हम कैसी बीवियां, हम कैसी माएँ हैं, हम कैसे अल्लाह के बंदे हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना। दोनों मियाँ बीवी साथ में बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे के चेहरे को देखते हैं, तहजीद तकफीन करते हैं। उसके बाद ये हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में जाते हैं और जाकर सारा माजरा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। और जब बताते ना तो जानते हैं अल्लाह के ताला से हमारे प्यारे आका दुआ करते हैं कि रात में जो तुमने सोहबत की थी ना, अल्लाह तबारक व तआला उसमें खैर और बरकत अता फरमाए। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, उस दिन जो हमल होता है ना वो ठहर जाता है, रुक जाता है, और जो उससे बच्चा पैदा होता है ना उसका नाम अब्दुल्ला रखा जाता है। और कहा जाता है, हदीसों में रिवायतों में आता है कि अब्दुल्ला से कई उलमा पैदा हुए उनकी नस्ल से। तो ये होता है सब्र का आलम। आज हम सब्र का दामन पकड़े तो तभी तो अल्लाह हमें देगा, तभी तो हम नतीजे पे पहुंचेंगे ना, कोई अच्छे नतीजे पे। लेकिन आज हमारे अंदर सब्र नहीं है, तो अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और शुक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए कि हर हाल में जैसे रहे, अमीर रहे गरीब रहे, शौहर अमीर हो चाहे गरीब हो। देखिए कहते हैं कि शादी के बाद रिस्क जो मिलता है वो बीवियों की किस्मत से मिलता है, और जो औलाद मिलती है वो शौहर की किस्मत से मिलती है। लेकिन इन दोनों मामलों में हमारे वहाँ का हालात मुख्तलिफ है, अलग है। औलाद ना हो तो माँ को कोसा जाता है, औरतों को कहा जाता है, और रिस्क ना हो तो मर्दों को सुनाया जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो देखिए अल्लाह से बेहतर कोई नहीं, हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, नमाज पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी किस्मत को भी बदल सकता। कहते हैं ना हमारी जिंदगी में मुकद्दर में जो होने वाला है ना वो सब अल्लाह ने लिख दिया है, पहले ही सब लिख के रखा है। लेकिन हाँ, दुआ एक ऐसा हथियार है जो हमारे मुकद्दर को लिखे हुए तकदीर को भी बदल सकता है। तो दुआ वाले हथियार को अपनाएं, नाशुक्री ना करें, शुक्र बजा लाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इस दुनिया में ना सही आखिरत में इसका सिला हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि सब दुनिया ही तो नहीं ना है, मरना भी है। तो अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और शुक्र से जिंदगी गुजारने की भी तौफीक अता फरमाए। एक बार पूरी महफिल कहते सुभान अल्लाह। आइए इस महफिल मिलाद को आगे बढ़ाते हैं और एक नाते पाक का नजराना आका की बारगाह में पेश करके इस महफिल का इख्तिताम कर देते हैं। कौन और पढ़ेगा ना? ये लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जिसको पढ़ना है। 2 लोग हैं। ऐसे अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले बार दरूद पाक का नजराने करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ऐ ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। वो दुनिया, वो दुनिया, वो दुनिया के बातों से टूटा हुआ मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, मदीना ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जानी, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जानी, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। दरूद पाक पढ़ें। ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम
हुस्न सराबा कोई नहीं, औसाफ तो सब में पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं। और एक बहुत मीठा शेर है, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत में रुsul मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। जी शान नबी है सब, लेकिन जी शान नबी है सब, लेकिन मेरा का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। जी शान नबी है सब, लेकिन मेरा जगह दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। और दूसरे सवाल पर मैं, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम से बरी पर पहुँचे हो, पहुँचे हो। खत में रुsul मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम अलैकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ये फूल खिल के हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिल के हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर की बातें समा, ऐसी खुशबू चमन के दिलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के दिलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिज्र तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल
जन जाला तो करे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तौफीक दे बैठे के हाँ आप जाइए रात भर कहीं हम रात भर बैठे खाना बनाना नहमदु रसल्ली अला करीमिही अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरिश्ते जिनकी गली में क़याम करते हैं, फरिश्ते जिनकी गली में क़याम करते हैं, हम उनका जिक्र बसर एहतराम करते हैं। सनाए सैयदे आलम, सनाए सैयदे आलम इतायत आका